स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में तुम लोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे रिलेटेड मेंडल्स पॉस्टुलेट्स को बताया गया था। आज हम जानेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। एक ही समय अगर दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का स्टडी किया जाए तो वह कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसा कि तुम लोग को बताया गया था, tall plant is crossed with short plants. In monohybrid cross, only one character, inheritance of only one character are discussed, that is height of the plants. But in dihybrid cross, at a time, inheritance of two characters are explained, such as tall plant with round seed, short plant with wrinkled seed. Okay, total possible dihybrid cross from 7 character is 21. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 21 डाईहाइब्रिड क्रॉस का। अब इसको कैसे 21 निकालने की अगर हम बात करें तो जैसे देखें, टॉल, शॉर्ट अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स, एक्सियल, टर्मिनल, वायलेट, वाइट, राउंड, रिंकल्ड, etc। अब इसमें हमको देखना है कि एक बार लेते हैं टॉल के साथ एक्सियल, तो 1 पॉसिबल हुआ। टॉल के साथ वायलेट, टॉल के साथ राउंड, इस तरह से सभी के साथ देखें तो टोटल 21 पॉसिबिलिटी है। And Mendel never performed all possible dihybrid cross, means 21 dihybrid cross. Mendel never performed all possible डाईहाइब्रिड क्रॉस। वो सभी का क्रॉस नहीं देखे थे, कुछ क्रॉस कराए। जनरली किसके लिए कराए तो वह लिए शेप ऑफ सीड, तो शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड wrinkled, and color of first shape of seed and second character color of seed। and color of seed के लिए दो कैरेक्टर, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। सो मेंडल performed dihybrid cross for two characters. One is shape of seed and other is color of seed. Okay, now see the cross, the genetic combination, genetic makeup or genotype of two characters, for two characters such as round seed and yellow seed। Okay, round seed and yellow seed crossed with wrinkled and green seed। फैक्टर फॉर राउंड, कैपिटल आर, येलो, कैपिटल वाई, रिंकल्ड, स्मॉल आर, स्मॉल बाई, बिकॉज ग्रीन एंड रिंकल्ड आर रिसेसिव कैरेक्टर, round and
LOR, dominant character. So the factor of dominant character is written in capital letter and recessive of small letter. Okay. During gamete formation, separation of factor R by and during, so after gamete formation, fertilization, fusion, capital R, a small r, capital Y, a small y, this like. These are the plants of F1 generation, filial 1, and all characters of plants are round and yellow. Round and yellow. Okay. In next generation in F2, अब देखिए these plant produce 4 types of gametes. प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. इसके लिए एक फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला फॉर गैमेट फॉर्मेशन. दैट इज 2n, 2 पर पावर n means where n is heterozygous condition. Heterozygous condition. Okay. Now see, in this example, both are in heterozygous condition. यह भी हेट्रो में है, यह भी हेट्रो में है, मतलब 2 heterozygous condition है. 2 पर पावर 2 is equal to 4. It means 4 gametes are produced by each plant. Capital R with capital Y, capital R with a small y, a small r with capital Y, a small r with a small y. Means capital R, capital Y, capital R, a small y, a small r, capital Y, a small r, a small y. As like this, 4 gametes also produced from this plant. Okay. One acts as male gamete, other acts as female gamete. अगर इसको भी देखें, या इन अदर वर्ड, इन अदर फॉर्म, इन दिस वे, वन साइड कैपिटल आर अ स्मॉल आर, अदर साइड कैपिटल वाई अ स्मॉल वाई. अब देखिए इसमें इधर से आर इधर से वाई, मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, अ स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर अ स्मॉल वाई, अ स्मॉल आर अ स्मॉल वाई, बोथ आर से. ओके. सो ईच प्लांट प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. ठीक है. अब ये 4 गैमेट इधर है, 4 गैमेट्स इधर है. इधर का 4 अगर एक से मिला तो पॉसिबिलिटी है 4 प्लांट्स का. फिर इधर का 4 इधर के दूसरे से मिलेगा, फिर 4. इट मीन्स इन F2 जनरेशन 16 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइहेब्रिड क्रॉस. ओके. एंड दैट क्रॉस इज is like. Okay.
one side these gametes, other side these gametes. Capital R, capital Y, capital R, small y, a small r, capital Y, a small r, a small y. Okay. This is called Punnett square. This square is called Punnett square, given by scientist Punnett. इस स्क्वायर का नाम हम देते हैं पन्नेट स्क्वायर, जो कि पन्नेट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। अब एक तरफ हमने 4 गैमेट इधर लिया, इधर दूसरे प्लांट का गैमेट्स लिया। अब देखिए, दीज आर एक्ट्स एज फीमेल गैमेट्स। जो हम वर्टिकल लिए हैं वह फीमेल गैमेट्स को शो करेगा। वर्टिकल फीमेल गैमेट्स, हॉरिजेंटल मेल गैमेट्स। दिस साइड मेल गैमेट। ओके, वर्टिकल फीमेल गैमेट्स, हॉरिजेंटल मेल गैमेट्स। ठीक है। अब देखिए, हम बनाइए सब कॉलम को। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है। इस तरह से टोटल 16 प्लांट का प्रोडक्शन हुआ। अब देखना है, देखिए, जनरली प्लांट्स ऑफ दीज डायगोनल ऑल आर सेम। अगर हम इसको सिंपली इस रूप में देखें, plants of these diagonal all are single, these all fours are single। ये चारों सिंगल होगा, उसका कहीं पेयर दूसरे पूरे टेबल में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए, these are same, these are same, these are four are same, these are same, these are same। देखिए, इस डायगोनल का सभी प्लांट्स सिंगल कैरेक्टर वाला, कहीं पेयर नहीं उसके मिलेगा। बाकी अगर हम इस डायगोनल की बात करें तो 4 सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, 4 डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। ओके, नाउ फाइंड द रेशियो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। चलिए, तो सबसे पहले नोट कीजिए इसको, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, दिस वन। ओके, नेक्स्ट दिस कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दिस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। दिस कैपिटल आर,
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ दिस इज रिटन हेयर, इसको हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। दिस इसको लिखे, देखिए नहीं लिखे हैं, मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई इसको लिखे हैं हेयर। ओके, चलिए इसको नहीं लिखे हैं। देखिए इसका लिखा हुआ है हेयर, यहां लिखा हुआ है सेम है, छोड़ देंगे इसको। देखिए यहां लिखा हुआ है, छोड़ देंगे, नहीं लिखा हुआ है। दिस नो, this one capital here, this also here, this is written here. Okay, and last one is, देखिए कैरेक्टर कैसा होगा इसका, राउंड येलो। 1 minute, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ ऑल जीनोटाइप। सबका हम नंबर देखें, इसका नंबर पूरे टेबल में 1 है, यहां है, इसके अलावा कहीं नहीं है। इसका नंबर ए कंडीशन तो ये दोनों होगा, ये दोनों जैसा कि यहां बताया गया है, दोनों से 2। नेक्स्ट ए तो यहां और यहां दोनों सेम। डायगोनल, दिस डायगोनल नंबर 4। फिर इसका पोजीशन देखा कहां है, कैपिटल यहां, ए डायगोनल, इट मीन सिंगल। 2 1 2 1, ये हो गया सबका नंबर। अब ध्यान दें, कैरेक्टर ऑफ दिस प्लांट राउंड एंड येलो, round yellow, this is also round yellow, this one round yellow, this round and green, round and green, round green, wrinkled yellow, wrinkled yellow, wrinkled green, wrinkled and green। ओके, अब देखिए सारा कैरेक्टर सा प्लांट्स का टोटल 16 प्लांट, 2 1 3 2 5 4 9 10 12 13 15 16, टोटल 16 प्लांट हो गया ना। अब देखना है राउंड और येलो, दीज 4 मीन्स 2 1 2 3 2 5 4 9 प्लांट्स आर राउंड एंड येलो। नेक्स्ट राउंड एंड ग्रीन, दीज 2, नंबर ऑफ प्लांट्स 2 1 3, wrinkled yellow 3, wrinkled green 1। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9 3 3 1। ओके, इसको मिटाता हूं मैं। फिनोटिपिक रेशियो 9 3 3 1। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर हमने बाहर से देख लिया कि उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, तो वो हो गया 9 3 3 1। एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक मेकअप रेशियो इज 1 2 2 4 1 2 1 2 1, दैट इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो। 1
2 2 4 1 2 1 2 1। सिंपल अगर आप करने का तरीका देखें तो 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, ये हो गया जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, नाउ दूसरे रूप में भी इसको निकाल सकते हैं। देखें, हम जो देखे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक 1:1। ओके, मोनोहाइब्रिड मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर, मीन्स मोनो का डबल हो जाएगा डाई। अब अगर इसको हम डबल करके देखें, अब निकालिए फिनोटिपिक डाई के लिए, डाइहाइब्रिड मीन्स मोनो इंटू मोनो, मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लाई मोनोहाइब्रिड, फिनोटिपिक 3:1 मल्टीप्लाई 3:1। देखिए 3 3 जा 9, 3 1 3 1 3 3 1 1 जा 1। दिस इज द रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड दिस इज फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि हमने क्या लिया 3 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम इसका 1:1 को हम डाइहाइब्रिड कन्वर्ट करें, देखिए आइए इसका 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 1, मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड इक्वल डाइहाइब्रिड। 1 1 1 1 जा 1, 1 को पहले तीनों से देख लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 को फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 2 को 1 से 2, 2 को 2 से 4, 2 को 1 से 2, फिर 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, 1 को 1 से 2 1 3 4 6 10 6 10 12 13 12 16 16। तो आ गया थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे, ठीक है ना। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस Mendel also proposed a law, postulates, that is called law of independent assortment. Next law given by Mendel is law of independent assortment. Conclusion of dihybrid cross. Conclusion of dihybrid cross is law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी लॉ क्या कहता है?
inheritance of more than one character occurs independently. Simply, inheritance of more than one character independently in next generation. नेक्स्ट जनरेशन में एक कैरेक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंट रूप में इनहेरिटेंस दिखाएगा, करेगा। दूसरे रूप में कह सकते हो इसको, जैसे हमने लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी के बीच अभी हमने क्रॉस देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। राउंड विथ येलो and here wrinkled with green. Independent assortment means each character transmit from one generation to next generation independently without affected from other characters. यानी जो राउंड है वह सिर्फ येलो के साथ नहीं जाएगा बल्कि राउंड ग्रीन के साथ भी जाएगा। यहां रिंकल्ड ग्रीन के साथ है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ है। इट मीन्स रिंकल्ड इज नॉट ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, इनहेरिटेड विथ ग्रीन, ऑल्सो इनहेरिटेड विथ येलो। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कह सकते हैं round is not only inherited with yellow, it is also inherits with ग्रीन। यानी राउंड हमेशा सिर्फ येलो के साथ ट्रांसफर नहीं होगा, राउंड ग्रीन के साथ भी इनहेरिटेंस उसका होगा। यही कारण है कि F2 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला 9331 का रेशियो आया, 9 प्लांट कैसा था? राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 wrinkled and yellow and 1 wrinkled and green। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब जरा इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नोट कीजिए। सपोज दैट टेबल मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। इन F2 generation of dihybrid cross, question, in F2 generation these 16 plants are progeny of F2 generation. Okay, so in F2 generation of dihybrid cross, find the probability of
of following offspring, किस ऑफ स्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? फर्स्ट होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, थर्ड कंडीशन, होमोजाइगस फॉर वन एंड heterozygous for other। चलिए इस तीन का निकाले पहले, फिर हम आगे देखते हैं। Next, D, plants having parental character। चलिए इस चार को देखें हम। फर्स्ट है होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। हम दो कैरेक्टर लेकर चले हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर इज राउंड एंड येलो, रिसेसिव कैरेक्टर्स रिंकल्ड एंड ग्रीन। माय क्वेश्चन इज होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों के लिए होमोजाइगस। ध्यान दीजिए, होमोजाइगस है नहीं, एक के लिए होमोजाइगस, सिर्फ एक के लिए। इट मीन्स पूरे में से होमोजाइगस का कंडीशन एक है, एक यहां और एक यहां। दो कंडीशन हो गया ना। एक देखिए यहां होमोजाइगस के लिए फुल होमोजाइगस, दीज आर फुल होमोजाइगस। इट मीन्स टोटल होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। डोमिनेंट रिसेसिव नंबर कितना? 4। कितने प्लांट्स में? 16 प्लांट्स में। मीन्स 4/16 1/4 इक्वल टू 25% की प्रोबेबिलिटी है। पूरे 16 प्लांट्स में दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी 25%। ओके। नेक्स्ट इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। ध्यान दे, दोनों के लिए। इसमें एक हेटेरोजाइगस, एक यहां देखिए दोनों हेटेरोजाइगस। वन हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस फॉर बोथ, हेटेरोजाइगस फॉर ओनली राउंड। इट मीन्स these diagonal, these 4 are heterozygous for both characters, means also 4. So 4/16 is equal to 1/4 is equal to 25%. Okay. Next, homozygous for one and heterozygous for other। एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस। ध्यान दीजिएगा, एक के लिए हेटेरो, एक के लिए होमो। इसको काउंट करेंगे, सिंबल देते हैं।
दिस वन, एक के लिए होम हेट्रो, एक के लिए होमो, दिस वन हेट्रो फॉर बोथ, हेट्रो फॉर वन, homo for both, hetero for both, hetero for one, this hetero for one, hetero for both, hetero for both, hetero for one, hetero for both, hetero for one, hetero for one. Count the total plant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Homozygous for one and hetero for other 8 plants. Out of 16, 1 by 2 is equal to 50%. Okay. One more question. Plants having parental character. वैसे प्लांट का नंबर कितना होगा जो पेरेंट्स के जैसा हो, और पेरेंट में हमने लिया था राउंड विथ येलो एंड रिंकल्ड विथ ग्रीन। राउंड विथ येलो, ध्यान दे, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है ना। टोटल पेरेंटल टाइप में राउंड येलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Total 10. 10 by 16, 5 by 8. Probability of plants having parental characters, and parental character is on the basis of external appearance, on the basis of phenotype, not on the basis of genotype. Okay. Next some question. One gamete formation से रिलेटेड देख लें. One question more. Gamete formation. Question. Number of gametes produced from by plants having genotype A, B, B, C, C, D, D. ए किसी प्लांट का जीनोटाइप है, इससे गैमीट का कितना नंबर, कितने गैमीट से बनेंगे नंबर, और उसका टाइप्स निकाल सकते हैं कौन कौन गैमीट होगा।
जल्दी से आप निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। अभी मैं बताया था फॉर्मूला गैमेट फॉर्मेशन के लिए, क्या था? 2 to the power n, where n is number of heterozygous condition. n is number of heterozygous condition. In this genotype, capital B small b, capital C small c, capital D small d. These are three are in heterozygous condition. तो अगर हम निकालें 2 to the power 3 इक्वल टू 8 गैमेट्स। कितना गैमेट इससे बनेगा? आंसर हो गया 8 गैमेट्स। ठीक है, अब 8 गैमेट्स कैसे बना, अगर उसको हम निकालना चाहे तब ध्यान दो। हम 2 को लेकर चले पहले, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इन 2 कंडीशन में। ठीक है, कैपिटल सी ए से सिर्फ एक जीन कैपिटल ए 1 टाइप, बी से 2 टाइप, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या बन जाएगा? ए बी एंड ए बी। ए बी एंड ए बी 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस। ओके, अब इसके साथ मिला लीजिए सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, प्रोड्यूस 2 टाइप्स सेपरेशन, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। अब इसके साथ मिला लीजिए पहले इसको इन दोनों के साथ, इट मीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। नाउ कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। 4 टाइप्स हो गया। अब बच गया डी डी, फिर लेकर चले कैपिटल डी स्मॉल डी, 2 टाइप्स, कैपिटल डी स्मॉल डी, सबके साथ मिलेगा फिर बारी बारी से। देखें, पहले इस 4 को कैपिटल डी के साथ, फिर 4 को स्मॉल डी के साथ। पहले 4 को कैपिटल डी के साथ, फिर 4 को स्मॉल डी के साथ, मीन्स ए बी सी कैपिटल डी, ए बी स्मॉल सी कैपिटल डी, ए बी कैपिटल सी कैपिटल डी, इसके साथ ए बी सी कैपिटल डी, सबके साथ कैपिटल को मिलाया, अब सबके साथ स्मॉल को, इट मीन्स ए बी सी स्मॉल डी, ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ए बी सी डी, इसके साथ ए बी सी डी। नंबर ऑफ टोटल गैमेट्स इक्वल टू 8। ओके, अब आपके पास जो भी बुक होगा उससे आप कैलकुलेशन कीजिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।